the question. I didn't solve any. Okay, that is it's fine. But whenever you got time, please try to solve this. Okay, it will enhance your understanding of the abstract classes. It is easy. It is so easy. Okay. Yeah. Okay. Let's go and we'll talk about interfaces. Um, See, interfaces is again we use something for abstraction for achieving abstraction. But as we have interface, so what we can have inside. See, interface and abstract classes are similar. But what is the difference? In interface, we will write interface. Interface is not class. Okay, we write interface something like car. And in interface, you can have only abstract method. What? Only abstract method. समझ आया? Lucky. Yeah. Means we cannot have normal methods inside abstract class. You can have, sorry, inside interface. We can have only what? We can have only abstract methods in an interface. समझ आया? Hmm? सर सेंटेंस बताइए. Okay. So in interface, we can have only abstract methods. Interface contains only, okay, suppose this is the interface I have. Interface, I will write drive or not drive. I'm sorry. I'll write interface car. Interface contains only abstract functions, abstract methods. It contains only abstract methods. We cannot have a normal method inside interface. समझ आया? Yeah. Lucky. Yeah. Is that clear? So as abstract class is collection of abstract methods and normal methods as well. But in interface, we can have only abstract methods. No, if we will try to declare abstract method inside interface, we will get an error. समझ आया? Okay. सर It, फिर से एक बार. we can only have abstract methods inside an interface. Is that clear? Yeah. We cannot have normal methods inside an interface. Okay. Second thing, we cannot create an object of an interface. Cannot create an object. We cannot initialize it. समझ आया? We cannot initialize. Initialize an interface. Just like abstract classes, we cannot create an object of abstract class. Same thing, we cannot initialize an interface. समझ आया? Yeah. So this interface will always rely on other classes so that it will inherit and implement it. समझ आया? ये अदर क्लासेस पे डिपेंड होगा. इट विल डिपेंड ऑन अदर क्लासेस. समझ आया? Yeah. इज दैट क्लियर? Lucky. Yeah. So the other classes will inherit it and override those methods. It will implement those methods. यानी जो भी चीज़ें इसके अंदर suppose A, B, C, D, E, F. So everything which is here, every method inside an interface, it is an abstract. So we keep, and abstract means there is no implementation. So other class have to inherit it. Suppose some class, something like driver. So this is a class, which is a class, okay? Class driver. It will inherit an interface and then implement those method here. समझ आया? Hmm? Okay. Yeah. Okay. By overriding. This driver will override A, B, C, D, E, F, right? And implement it. तो इसके अंदर बॉडी खुलेगा है ना? बराबर? Okay. इतना समझ आ गया? इज दैट क्लियर? या इज दैट क्लियर? Yeah. पक्का इतना समझ आ गया? हाँ. Things to be understood for the for an interface. First, it will have only abstract method. Second, we cannot initialize an interface. Third,
it will rely other on things. other classes, that other classes will inherit it and implement those methods by overriding it. Is that clear? Hmm? Yes. Okay. So actually, what if I wanted to explain interface? How we can explain interface? So for explaining interface, I will give you very simple example. Suppose uh, जब आप एग्जाम देने जाते हो कॉलेज के अंदर फाइनल एग्जाम, ओके, यू राइट अ फाइनल एग्जाम, है ना? ओके, व्हेन वी Yes. गो टू द कॉलेज फॉर द फाइनल एग्जाम, तो जो आपको पेपर होगा, सपोज जावा का पेपर है, तो कॉलेज के अंदर जो जावा का जो पेपर होता है वो एक ही कॉपी आती है, पता है आपको? जो कॉपी आती है ना कॉलेज के अंदर एक ही आती है। डू हैव यू नोटिस दैट? Question paper. क्वेश्चन पेपर एक ही आता Yes. है, पता है? Yes. एक ही आता है। अगर सपोज यू इन योर कॉलेज देर इज अ 1000 स्टूडेंट जिनका जावा का पेपर, तो 1000 कॉपीज नहीं आती, कितनी आती है? एक ही आती है, समझ आया? ओके। देन कॉलेज की Yes. फैकल्टीज जो है ना वो आधा घंटा पहले या फिर पहले आता ही वो लेट है, 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, या फिर समथिंग लाइक दिस आता है वो। अगर आपने नोटिस किया, कभी नोटिस किया है? हम्म, देखिए। Yes. But हमारे कॉलेज में हमारे ही कॉलेज में पेपर मिलते हैं तो अच्छा, सो दैट इज यूनिक केस, बट इन आवर टाइम, सो एक कॉपी आता है, एक ही आता है। सपोज आई हैव पेपर ऑफ लाइक मशीन डिजाइन, ओके, तो उसका एक ही कॉपी आता है। देन व्हाट आवर कॉलेज डिपार्टमेंट डू, दे मेक द जेरोक्स ऑफ दिस। सपोज देर इज 100 स्टूडेंट, so they create 100 copies for this, समझ आया? जेरोक्स, समझ आया? कॉलेज में ही कॉपीज निकालते, जेरोक्स निकालते हैं, क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकते ना। अगर आप 100 कॉपीज ला रहे हो तो हो सकता है कि पेपर लीक होने का चांसेस बढ़ जाए, बराबर है ना? yes. तो वो कॉलेज में ही कॉपीज बनाते हैं। बट सी गाइज, सो इसके बाद में 100 कॉपीज होती है, सो 100 कॉपीज फॉर 100 स्टूडेंट है, तो 100 कॉपीज होती है ना? बराबर है, सही है? Yes. तो इस एग्जाम्पल से आपको क्या दिखाई दे रहा है? व्हाट यू कैन ऑब्जर्व हियर, व्हाट यू A कैन ऑब्जर्व? single a single thing can be copied thousands of times, या but it एंड can be repeated. दिस सेम फिनोमेना कॉल्ड एज व्हाट? कैन आई से दिस इज अ क्लास Yes. and these all We are objects? can use functions like that also, right? Okay, can, Multiple times. yeah, can I say this question paper is a class, and this all the 100 copies it is objects I have? Yeah, lucky, Yes. बोल सकते हैं ऐसे? Yes. ओके, पक्का इतना समझ आ गया? नो प्रॉब्लम, टिल इट यू हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग। what is what actually the example we are taking means, the example we are taking according to it, have you understand this much कि this Yes. 100 is an object, this 100 copies is an object? सपोज एक आपको मिल रहा है, सो दिस कॉपी इज टू लकी, दिस इज टू लीना, सो दिस लीना, देन सपोज ये कॉपी रोहन को मिला है, देन और भी बाकी ए बी स्टूडेंट को मिला है, बराबर है? डी, ई, एफ, बराबर है? Yes. ओके, तो मुझे बताओ, ये क्वेश्चन पेपर है, कैन आई से इट इज एन ब्लूप्रिंट? इट इज अ ब्लूप्रिंट? कैन आई से इट Yes. इज अ ब्लूप्रिंट? ओके, सो इट इज अ ब्लूप्रिंट, फाइन। अब मुझे बताओ, ये जो पेपर है, ये जो पेपर है विच इज आई विल से जावा, ठीक है? जावा का जो पेपर है, जावा के पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस यहाँ पे, द क्वेश्चंस विच इज हियर इनसाइड दिस पेपर, ये किसने डिसाइड किया कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर ये क्वेश्चन होंगे? किसने डिसाइड Yes. किया? मेरा साउंड आ रहा है? सर एक बार फिर से रिपीट करिए। ठीक है, ये मैं बोल, कितने रिपीट? हाँ हाँ हाँ, करता हूँ नो प्रॉब्लम, ठीक है। सी, ये जो जावा का जो क्वेश्चन है, कैन आई से इट इज अ ब्लूप्रिंट? या इट इज अ ब्लूप्रिंट, राइट? Yes. तो ये जो
जावा का जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो है क्लास है, क्लास, ठीक है, ये नहीं, जो क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर जो क्वेश्चंस है, किसने डिसाइड किया कि जावा के पेपर के अंदर ये वाले क्वेश्चंस होने चाहिए? टीचर। टीचर, यानी जिन्होंने जो जिन्होंने पेपर सेट किया होगा, बराबर है? यस। ओके। तो यानी कहने से समथिंग लाइक दिस कि ये जो ब्लूप्रिंट है, ये बनने से पहले एक और ब्लूप्रिंट बना होगा, हाँ। क्योंकि वो पेज उन्होंने रफली बनाया होगा, वो ये क्वेश्चन हो गया। yes, यानी इस ब्लूप्रिंट से पहले भी एक ब्लूप्रिंट है, बराबर है कि yes, नहीं? और इस ब्लूप्रिंट ने क्या डिसाइड किया? इस ब्लूप्रिंट ने डिसाइड किया कि जावा का जो पेपर होगा उसके अंदर क्या क्वेश्चंस होंगे, बराबर है? ओके, फाइन, इतना समझ आ yes, गया? सो yes, द फर्स्ट ब्लूप्रिंट जो ये है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। तो इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस को बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। समझ आया? yes, यानी yes, इंटरफेस, इंटरफेस इज कॉल्ड एज व्हाट? ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास। समझ आया? ओके, yes, लिखिए। Interface will decide, see, very easy. Interface will decide what class must do. Okay, what interface decide कि ये जो क्लास है इसके अंदर क्या क्या चीजें होना चाहिए, ये इंटरफेस डिसाइड करता है। समझ आया? लकी। yes. ओके, सो व्हाट इज माय इंटरफेस? Inter- Interface decides what class. ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास, व्हाट इज इंटरफेस? वंस अगेन टेल मी। The interface is the blueprint of class. एंड व्हाट इंटरफेस डिसाइड्स? It decides what does a class will contain. Okay, it will define what class must do, क्लास ने क्या करना चाहिए, ये इंटरफेस डिफाइन करे। समझ? यानी देखो, अब इंटरफेस के अंदर जो ए, बी, सी, डी, ई है, ये जो चीजें है ना, ये डिफाइन कर रखी है। अब क्लास के अंदर भी ये चीजें होनी ही चाहिए। क्या करना पड़ेगा? क्लास को भी ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इसके अंदर, बराबर है? ठीक है, समझ आया? Yes. ऐसा तो नहीं हो सकता कि क्लास बोल रहा है कि मैं तीन चीजें तो इंप्लीमेंट कर लेता हूँ बट बाकी दो मैं नहीं कर रहा, मैं अपने मन से डाल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होता ना? बताओ, लकी, समझ आ रहे हैं? हाँ। देखो, इंटरफेस ने अगर बोला कि ये चीजें इंप्लीमेंट करना है, तो क्लास को ये चीजें इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं। यानी क्लास ऐसा नहीं बोल सकता कि आई कैन हैव माई ओन डेटा, आई विल इम्प्लीमेंट बाय माई सेल्फ, ऐसा नहीं बोल सकता हो। क्यों? क्योंकि इंटरफेस विल टेल ये चीजें आपको करना है, आपको सोचना नहीं है। क्लास डोंट हैव एनी ऑप्शंस, जो इंटरफेस ने बोला वो उसको करना ही पड़ेगा। समझ आया? Yes. जैसे इंटरफेस ने बोला कि ये चीजें क्लास के अंदर होना चाहिए, अगर उसने इसमें से तीन चीजें क्लास के अंदर इंक्लूड कर लिया और बाकी चीजें छोड़ दी, तब भी एरर दे देगा कि नहीं आप बाकी चीजें को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। समझ आया? Yes. तो जैसा इंटरफेस बोलेगा वैसा ही क्लास को करना पड़ता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो Yes. हमें ये समझ में आ गया कि अभी अभी तक तो हमने बोला था कि क्लास ही ब्लूप्रिंट होता है, बट क्लास बनने से पहले भी एक ब्लूप्रिंट बनता है जिसको बोलते हैं इंटरफेस। ठीक है। Yes. अब जब भी आप प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, आप बड़े बड़े जब कंपनीज में काम करोगे, तो वहाँ पे एक इंटरफेस डिफाइंड होता है। यानी देखो, अब हर कंपनी का काम करने का जो काम है वो वे है, वो अलग अलग है ना? तो वो कंपनी क्या करती है? इंटरफेस प्रोवाइड कर देती है आपको। क्या करती है? इंटरफेस प्रोवाइड कर देती है। क्या करती है? इंटरफेस प्रोवाइड कर देती है, और फिर आपको नॉर्मल क्लासेस बनाना पड़ता है और जो जो इंटरफेस में बोला है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। समझ आया? अब वो इम्प्लीमेंट कैसे करोगे वो आपकी जिम्मेदारी है, बराबर है कि नहीं? बराबर है लकी? Yes. जैसे आपने क्लास बनाया और इस इंटरफेस के अंदर ड्राइव फंक्शन है, ठीक है, ड्राइव है, तो आप क्लास बनाओगे और उसके अंदर ड्राइव को इम्प्लीमेंट करोगे, बराबर है? बराबर है? समझ आया? Yes. ड्राइव को इम्प्लीमेंट
इसके अंदर, बट वो इम्प्लीमेंट किस तरह से करोगे वो आपको इंटरफेस नहीं बताएगा। इम्प्लीमेंट तो आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो पूरा बता देगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा उसके आगे कि मैं कैसे करूँगा। तो ड्राइव तो बता देगा कि क्लास के अंदर ड्राइव होना चाहिए, बट वो कैसे करोगे वो आप, अब देखो कोई है वो स्लो स्लो चलाएगा, आराम से चलाएगा, सही तरीके से चलाएगा, बाकी कोई ये तो कोई हो सकता है कि भगा रहा है, वो उड़ा रहा है, ऐसी भी चीज़ हो सकता है ना, बराबर है। आर यू गेटिंग दिस? yes, तो ड्राइव को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो इंटरफेस नहीं बताएगा, वो आपको खुद सोचना पड़ेगा। अगर आप एप्लीकेशन के अंदर कोई फीचर ऐड कर रहे हो तो फीचर बोल मिल जाएगा आपको, समथिंग लाइक दिस, लोडिंग, ऐसा कुछ लोडिंग वाला फीचर कुछ ऐड करना है, बट लोडिंग को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो नहीं बताया जाएगा आपको, वो खुद करना पड़ेगा। ये क्या लॉजिक होगा लोडिंग के लिए, जो जो लॉजिक लगेगा ये आपको बिल्ड करना पड़ेगा, कोई इसका पहले से ब्लूप्रिंट नहीं होता है। बट करना क्या है वो बता देगा, करना कैसे है ये नहीं बताएगा। तो क्लास के अंदर आपको उसको ओवरराइड करके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बात समझ आ गया? तो ये yes, इतना 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 क्लियर है ना पक्का? yes, ओके, आगे बढ़े। yes, कंफ्यूज तो नहीं हुआ? हम्म, yes, पक्का बताओ, कंफ्यूज नहीं हुआ ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके yes, अंदर? ओके, लेट्स लेट्स सी। और बहुत इजी है, अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आती है ना, आप इंटरफेस बहुत आराम से कर पाओगे। इंटरफेस में क्या है, उसके अंदर बस एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी। इस हमारे पास जो हमने अभी तक देखा है उसके अंदर तो नॉर्मल क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास दोनों थी ना, अब इसके अंदर क्या होगा, ओनली नॉर्मल क्लास होगी, सॉरी ओनली एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। ठीक है, अब देखो हाउ वी क्रिएट इंटरफेस, जैसे हम क्लास बनाते हैं ना वैसा ही इंटरफेस बनाते हैं। जैसे आई विल राइट इंटरफेस, सबसे पहले लिखना है इंटरफेस, ओके, एंड देन यहाँ पे लिखना है, सपोज आई विल राइट कार, ओके, कार इज इंटरफेस, इज एन इंटरफेस, इज दैट क्लियर? कार, समझ आ गया? yes, अगर मैं इंटरफेस के अंदर नॉर्मल मेथड बनाना चाहूँ तो बनेगा नहीं, जैसे void ड्राइव, ओके, अगर मैं ऐसा बना देता हूँ मुझे एरर मिल जाएगा, आगे एरर, yes, क्यों, क्या बोल रहा है, इसको अगर हवर कर दो क्या बोल रहा है, इंटरफेसेस, इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट हैव अ बॉडी, क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है वो, आसपास में कोई बॉडी नहीं है, हो नहीं सकता। हो नहीं सकती क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट इसको तो बॉडी होती नहीं है, यानी वो बोल रहा है कि इंटरफेस के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होती है, बोल तो वो क्या बोल रहा है, इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी इंटरफेस के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है कैन नॉट हैव अ बॉडी। तो हम तो यहाँ पे नॉर्मल मेथड, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है तो नॉर्मल मेथड बन गया ना, बराबर, हाँ, बराबर। तो यहाँ पे मुझे ये निकाल निकाल देना पड़ेगा, ये जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की कि मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाया, नहीं लगाया ना। हाँ, देखो इंटरफेस के अंदर जो होते हैं ना, जितने भी मेथड हम बनाते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होती है ना, बनाते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट ही होना yes, चाहिए। तो हमें एब्स्ट्रैक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट एवरी मेथड इन एन इंटरफेस इज एब्स्ट्रैक्ट इटसेल्फ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है एब्स्ट्रैक्ट, समझ आया? क्योंकि इंटरफेस yes, के अंदर हम बना ही एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड सकते हैं, नॉर्मल मेथड तो बनती नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट ही बना सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट होती ही है वो, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें बस उसको एब्स्ट्रैक्ट की तरह दिखाना है कि ये एब्स्ट्रैक्ट है, जैसे ये है, ये एब्स्ट्रैक्ट लिखने का तरीका है, तो मुझे एब्स्ट्रैक्ट लगाने का जरूरत नहीं है। सो वी डोंट नीड टू ऐड एब्स्ट्रैक्ट हियर कीवर्ड, अपने आप ये एब्स्ट्रैक्ट ही होगा, यानी बाय डिफॉल्ट ये एब्स्ट्रैक्ट ही होता है, समझ आया? yes, एंड सपोज आई हैव अनदर फंक्शन व्हिच इज void play, play music, this is method I have, okay, uh, void something like रिपेयर, सपोज आई हैव रिपेयर फंक्शन एज वेल, कि रिपेयर तो करना पड़ेगा ना, कार तो है और रिपेयर तो करना पड़ेगा। अब देखो, अब इंटरफेस खुद में कुछ हो नहीं सकता, जैसे मैं इंटरफेस को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता ना, अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा, जैसे मैं आई विल राइट कार, S1 इज इक्वल टू न्यू कार, ऐसे करूंगा ना तो प्रॉब्लम आ जाएगा। अब ये जो किया मैंने ये इसको बोलते हैं एप्स, यहाँ पे मैं मेरा लॉस में नेटवर्क, लॉस नेटवर्क, क्या आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, कुछ कुछ भी नहीं आ रहा। हम्म, हाँ अब आ गई। ओके सी व्हाट आई हैव डिड, मैं इंटरफेस को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, अगर मैं इंटरफेस को ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करूंगा ना तो मुझे एरर आ जाएगा, जैसे अगर आई विल राइट कार S1 इज इक्वल टू न्यू कार, ऐसे अगर लिखूंगा ना तो मेरे को एरर आ जाएगा,
देखो आगे नहीं रहा, लिखिए ये क्या आ रहा है, क्या दिख रहा है वो, क्या बोल रहा है, कार इज एब्स्ट्रैक्ट कैनॉट बी इनिशियलाइज्ड। क्या बोल रहा है, कार इज अ एब्स्ट्रैक्ट कैनॉट बी इनिशियलाइज्ड, यानी कार जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट है, आप उसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते। बात समझ में आ गया? सही है। ये तो फिर कैसे करेंगे, हमें नॉर्मल क्लास बनाना पड़ेगा। सो आई विल राइट क्लास ड्राइवर। ओके। एंड देखो जब हमने क्लास, जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया था ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, लकी याद है? ये तो abstract कीवर्ड लिख के। हाँ, तो हमने एब्स्ट्रैक्ट के लिए जब हम उसको इनहेरिट करे तो मैं एक्सटेंड लिख रहा था ना, आई आई वाज राइटिंग एक्सटेंड, है ना? ये बट जब हम इंटरफेस को चाइल्ड क्लास से इनहेरिट करते हैं तो हम एक्सटेंड नहीं लिखते, हम बोलते हैं इम्प्लीमेंट्स। क्या लिखते हैं? इम्प्लीमेंट्स। यानी ये क्लास इम्प्लीमेंट्स करेगा उस इंटरफेस को, क्योंकि इंटरफेस खुद में तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता ना। तो हमेशा ध्यान में रखना, जब हम इंटरफेस को क्लास से इनहेरिट करते हैं ना, तो हम क्या लगाते हैं? इम्प्लीमेंट लगाते हैं। समझ आ रहा है? यस। देखो अगर मेरे पास सपोज आई हैव दिस कार विच इज इंटरफेस, मैं बोलता हूँ ये मेरा इंटरफेस है, ठीक है, और मैं इसको एक्सटेंड करवाऊंगा ऑफकोर्स विद व्हाट, क्लास, है ना? है ना? क्लास सपोज ले से ड्राइवर, मेरा साउंड आ रहा है प्रॉपर? ये मैं इसको क्लास से इनहेरिट कर रहा हूँ ना, एक ये इंटरफेस है और इंटरफेस को मैं क्लास से इनहेरिट कर रहा हूँ। तो जब इंटरफेस से क्लास को करते हो ना, तो यहाँ पे कौन सा कीवर्ड लगता है? इम्प्लीमेंट्स होता है। क्या होता है? इम्प्लीमेंट्स। समझ आया? यस। जब आप क्लास को क्लास से करते हो तो क्या लगेगा? एक्सटेंड। समझ आया? तो यहाँ पे हम इंटरफेस टू क्लास कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे लेंगे इम्प्लीमेंट्स। और वो होता भी है, जैसे ड्राइवर विल इम्प्लीमेंट दैट इंटरफेस, क्योंकि इंटरफेस खुद में तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता ना, है ना? ड्राइवर विल इम्प्लीमेंट्स दिस कार। ओके। अब जैसे ही मैं कार को एक्सटेंड करवाऊंगा तो यहाँ पे देखो मेरे पास प्रॉब्लम, यहाँ पे रेड लाइन आ गई, दिख रही है रेड लाइन? क्यों आई रेड लाइन? कि अब जैसे ड्राइवर ने कार को इम्प्लीमेंट किया, इनहेरिट किया, तो अब ये ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सारे मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा, है ना? बराबर है? यानी ड्राइवर को सारे मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ये जो सारे मेथड है इसको इसके अंदर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना, बॉडी खुद के अंदर, है ना? यस। तो इसके लिए यहाँ पे अगर हम हवर करते हैं ना, यहाँ पे क्या मिल रहा है, देख रहे हो आपको क्या मिल रहा है नीचे? क्या देखने को मिल रहा है? इंप्लीमेंट मेथड दिख रहा है, इंप्लीमेंट मेथड्स। हम्म। यस। इम्प्लीमेंट यानी अब वो बोल रहा है कि अब ड्राइवर को सारी की सारी चीज़ें जो ऊपर एब्स्ट्रैक्ट है को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर इसको इम्प्लीमेंट मेथड पे क्लिक करूंगा, देखो मुझे तीन मेथड मिल जाएगी, ड्राइव है, प्ले म्यूजिक है एंड रिपेयर है ना, जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। अब इसको ओके कर दूंगा ना, तो तीनों मेथड ओवरराइड होगी। देखो ओवरराइड हो गया है ड्राइव, ओवरराइड हो गया है प्ले म्यूजिक और ओवरराइड हो गया है रिपेयर। बराबर है? समझ आया? देखो, और फिर ये इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ, सपोज ड्राइवर, जो भी मुझे लिखना है, ड्राइवर इज ड्राइविंग अ कार, देन यहाँ पे अब देखो ये लॉजिक नहीं होता है। मैं इसको एक्चुअली अब करेंगे तो ये चीज़ें नहीं लिखते हैं। म्यूजिक इज स्टार्टेड और प्लेड, देन इज नॉट अ प्रिंट, ड्राइवर रिपेयरिंग द कार। समझ आया? हम्म। यस। अब मैं ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनाता हूँ, क्योंकि किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? चाइल्ड का, है ना? यस। क्योंकि इंटरफेस तो खुद में नहीं काम कर सकता ना। सो आई विल राइट ड्राइवर, ड्राइवर एस वन इज इक्वल टू न्यू ड्राइवर, ठीक है। फिर ड्राइवर डॉट ड्राइव कर सकता हूँ, है ना, एस वन डॉट प्ले म्यूजिक कर सकता हूँ, एंड एस वन डॉट रिपेयर कर सकता हूँ। बराबर है? यस। और अगर इसको रन करेंगे, व्हाट विल गेट, you can see driver is driving a car, music is played and driver repairing car। आया समझ में? मैं सही। कंफ्यूज हो गई। किस में कंफ्यूज हो रहा है? ओवरराइड और हमें ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट।
क्योंकि ये ओके, ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है? द पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास विल हैव अ सेम फंक्शन, है ना? है। बट जब आप कॉल करोगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होता है, पेरेंट वाला कि चाइल्ड वाला? राइट है। चाइल्ड वाला। ये समझ में आ गया? तो ओवरराइडिंग फंक्शन जैसे, अब देखो यहाँ पे ये जो चीजें हैं, जैसे ये इंटरफेस के अंदर जो मेथड है, ड्राइव है, प्ले म्यूजिक है और रिपेयर है, ये तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, बराबर है? है। अब कार को खुद नहीं पता है कि ड्राइव कैसे करना है। हाँ, अगर एआई, अगर आपने इंटीग्रेट कर रखा है तो उसको भी ट्रेन करना पड़ता है, खुद उसको नहीं पता कुछ। अपने कार ने अगर है तो कार को खुद से नहीं पता कुछ है, एक्सटर्नली हम इसको ट्रेन करना पड़ेगा मॉडल से, तो कर सकते हो। बट कार के अंदर ये सारे फंक्शंस हैं। अब इन सारे फंक्शन को कोई तो इम्प्लीमेंट करेगा ना, जैसे कोई उसको बाय करेगा, फिर ड्राइव करेगा, बराबर है ना लकी? है। तो इंटरफेस कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। तो ये जो इंटरफेस है ये दूसरे क्लास पे डिपेंड हो गया ना, कि कोई मुझे इनहेरिट करेगा, हम्म, है। और कोई मुझे इनहेरिट करके ये जो मेरी मेथड्स है, ड्राइव है, प्ले म्यूजिक है और रिपेयर, ये ओवरराइड करेगा। क्या करेगा? ओवरराइड ओ, करेगा। यानी यही सेम मेथड उसके अंदर भी लिखी जाएगी। जैसे ये अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो ये निकाल दो, ये एनोटेशन होता है। ये अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो ये निकाल दो, ठीक है? तो हमने क्या किया, जो फंक्शन ऊपर है सेम फंक्शन नीचे लिखा है, पब्लिक वॉइड ड्राइव। ये पब्लिक नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है ना, तो ये मैं निकाल देता हूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा अभी, जो ऊपर सारे जो फंक्शंस है ना उनको ओवरराइड करना पड़ेगा इन चाइल्ड क्लास। तो ओवरराइड कैसे करते हैं? वी विल राइट द सेम फंक्शन हियर, है ना? तो लिखेंगे वॉइड ड्राइव, राइट। है ना? ये एक फंक्शन हो गया। उसके बाद में दूसरा फंक्शन कौन सा होगा? वॉइड प्ले म्यूजिक। प्ले म्यूजिक। यहाँ पे प्ले म्यूजिक कर लेते हैं, सॉरी। अब यहाँ पे नाम ना गड़बड़ हो जाए तो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ, बट इसको बॉडी दे देता हूँ। तो आई विल राइट प्ले म्यूजिक, और यहाँ पे इसको बॉडी दे देता हूँ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? डिराइव क्लास रेटिंग द वीकर एक्सेस प्रिविलेज, कोई दिक्कत नहीं है, वीकर एक्सेस होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम। वॉइड, देन क्या है हमारे पास? रिपेयर, है ना? रिपेयर वाला लिख देता हूँ, तो ये वाला फंक्शन है मेरे पास, दिस फंक्शन, ठीक है? तो ये रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है? ये हो गया एक फंक्शन, समझ आया? Okay. तो पब्लिक, अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे भी पब्लिक लिखना पड़ता है, तो डोंट वरी अबाउट दिस। ये आपको इसको थोड़ा इग्नोर करना है, फॉर वाइल इसको इग्नोर करना है, ठीक है? तो पब्लिक 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 लगा दिया, और वॉइड ड्राइव, वॉइड प्ले म्यूजिक, वॉइड रिपेयर, यानी ये फंक्शन यहाँ पे मैं ओवरराइड कर रहा हूँ समथिंग। देखो, सेम फंक्शन मैंने इसके अंदर लिखा है, ड्राइवर के अंदर, और ये ओवरराइड हो रही है। अब ड्राइवर ये जो ओवरराइड होगा ना, अब इसके अंदर बॉडी देंगे अब, क्योंकि ये नॉर्मल क्लास है, नॉर्मल क्लास के अंदर बॉडी हो सकती है ना फंक्शंस को। तो यहाँ पे हम चीज़ों को ये फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम लिख देंगे ड्राइवर इज ड्राइविंग कार। समझ आया? समझ आया पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं है? विल राइट म्यूजिक इज स्टार्टेड, एंड रिपेयर के अंदर कर दूंगा नॉट अ प्रिंट ड्राइवर रिपेयरिंग पक्का, ठीक है? अब देखो ये चीज़ मुझे पूरा लिखना पड़ा ना स्क्रैच से, पूरा पूरे फंक्शन बनाना पड़ा। इसको हम ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा नहीं ना, तो ऊपर हमें रेड लाइन आ जाएगा, आ गया रेड लाइन। इसके ऊपर हवर करोगे, बोलेगा इम्प्लीमेंट मेथड, इस पर क्लिक करोगे, तीन मेथड आ जाएगी, इसको ओके करोगे, तीनों मेथड अपने आप जनरेट हो जाएगी। हमने लिखा क्या? पूरा नहीं लिखा, बराबर है ना? आ गई। अब इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा ओवरराइड, ये दिख रहा है ओवरराइड। तो ये ओवरराइड क्या दिखा रहा है, कि ये जो ड्राइव फंक्शन है ना, ये ओवरराइड हो रहा है, ऐसा दिखा रहा है कि ये ओवरराइड लग रहा है ना यहाँ पे। इसका मतलब वो हमें बता रहा है कि जो ड्राइव फंक्शन है ये ओवरराइड हो रहा है। और ओवरराइड का मतलब क्या है, कि पेरेंट क्लास के अंदर भी ड्राइव फंक्शन प्रेजेंट है, बराबर? तो ये इसको बोलते हैं एनोटेशन, इसको लेबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेबल। यानी लेबल हमें कुछ बताता है। तो ये ओवरराइड एक लेबल की तरह काम करता है, जो बता रहा है कि ये जो ड्राइव फंक्शन है ना, ये ओवरराइड हो रहा है। समझ आया? जैसे ये प्ले म्यूजिक, ये भी ओवरराइड हो रहा है, ये रिपेयर वाला ये भी ओवरराइड हो रहा है। तो इसके अंदर में जो लिखना है वो लिख सकते हैं।
जैसे फिर वही मैंने पहला ड्राइविंग, देन जो भी हमें इम्प्लीमेंट करना है, म्यूजिक इज स्टार्टेड एंड रिपेयर किया, रिपेयर का अलग समझ आया? नहीं। पक्का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। ये थोड़ा भी नहीं है? नहीं। हाँ। तो अभी अभी फिलहाल के लिए पब्लिक पब्लिक को इग्नोर करना पड़ेगा कि एक्सेस स्पेसिफायर आगे वाला टॉपिक में आएगा। ठीक है? ओके। नहीं। ओके। तो इन्हें ये क्या बोलते हैं, इंटरफेस समझ में आया? हाउ इंटरफेस नहीं। वर्क्स? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। हम्म, तो इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ what, sorry, what is interface? Interface is basically a blueprint of class. Okay, what interface decides? It decides what a class will do. Okay, or this is right. It will decide what class must have to do. Okay, must. If class will not do that, interface will give you error, है ना? बराबर? नहीं। Okay. We can also say something like this: interface decides what class should contain. It also tells this. I will just show you something. Lucky we have time, so I will just give you a quick revision thing. तो हम जावा नोट्स के अंदर आते हैं, एंड जावा के अंदर एंड चैप्टर 2 क्लासेस ऑब्जेक्ट, ओके, कंस्ट्रक्टर, लेट्स गो इनटू चैप्टर 3 सुपर मेथड इंटरफेस। मैं इसके अंदर कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बता, थोड़ा वेरी गुड टाइम टू टेल यू, ठीक है? देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है इंटरफेस इन जावा, एन इंटरफेस इज डिजाइन टू मेंटेन अ स्टैंडर्ड इन द डिराइव क्लास। समझ आया? डिराइव का मतलब क्या होता है लकी? चाइल्ड क्लास, है ना? Yes. ओके। तो देखो हम जब कोड लिखते हैं, जैसे मैंने वही बताया आपको, जब आप कंपनी में काम करने जाते हो तो अलग अलग वे फॉलो किया जाता है ना, उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, बराबर? अलग अलग तरीका यूज किया जाता है। अब हर एक जो ज्वाइन करने वाले उसको आप स्टैंडर्ड समझाना तो वो टाइम लग जाएगा, बराबर? है ना? कुछ चीजें तो वो आपको बता देते हैं, बट कोड कैसे लिखना है इसका आपको खुद से अलग ट्रेनिंग नहीं दिया जाता कि ऐसे ऐसे कोड लिखना है। समझ आया? नहीं। तो वो इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, तो इंटरफेस एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है, आप इंटरफेस को ध्यान में रखते रखते वैसे वैसे कोड करते हैं, बराबर? Yes. तो इंटरफेस एक इज डिजाइन टू मेंटेन द स्टैंडर्ड इन द डिराइव क्लास, है ना? डिराइव यानी चाइल्ड क्लास। इंटरफेस इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कॉन्स्टेंट और एब्स्ट्रैक्ट। ओके, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है वेरिएबल्स, ठीक है? यानी इंटरफेस को हम ऐसे बोल सकते हैं, इंटरफेस इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। वेरिएबल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बराबर है? नहीं। तो कांस्टेंट का मतलब होता है वेरिएबल्स, आप कांस्टेंट। तो इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कांस्टेंट एंड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखना है। द मेथड इन द इंटरफेस आर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट। देखो मैंने बोला ना, क्या बोला था? द मेथड इन इंटरफेस are by default abstract, so we don't need to use the abstract with the method prototype। दिख रहा है? नहीं। थर्ड क्या बोल रहा है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाँ बोलो बोलो। Nothing. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस स्पेसिफाइड, यानी जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं इंटरफेस को तो क्या स्पेसिफाई करता है? व्हाट अ क्लास मस्ट डू। हाँ, Yes. बोला ना ऐसे? Yes. ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट इंटरफेस। तो आपको इसका कोड ही मिल जाएगा जब इस कोड के अंदर क्या किया है। तो यहाँ पे एक इंटरफेस है विच इज स्टूडेंट इन्फो। सो यहाँ पे देखो कांस्टेंट क्या है? रोल नंबर, नेम, एंड ये जो दिख रहा है ना रोल नंबर नेम, ये कांस्टेंट है, ठीक है? नहीं। और ये जो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले है ये कौन सी मेथड है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। कौन सी है? एब्स्ट्रैक्ट, Abstract method. है ना? तो उसके लिए इंटरफेस तो मिला है। हाँ, तो इंटरफेस स्टूडेंट इन्फो, इन्होंने दो इंटरफेस बनाए, इंटरफेस स्टूडेंट इन्फो, इंटरफेस स्टूडेंट मार्क्स। देन इसको इस क्लास ने दोनों इसको इम्प्लीमेंट किया है, कर सकते हैं वैसे। Yes. दिस इज हाउ इट लुक लाइक। तो आप जब पेपर में भी लिखोगे ना तो अच्छे से लिखना, ठीक है? इसको थोड़ा इलेबोरेट करना, थोड़ा लेंदी करना पड़ता है ना चीज़ों को, क्योंकि हम
इतने ऐसे पॉइंट लिखेंगे तो फिर तो हो ही गया, मार्क्स में मिलेगा नहीं। हाँ। बट वो हमारे यहाँ पे जावा था, तो वो बेसिक से जावा था, उसमें इंटरफेस वगैरह नहीं है। इंटरव्यूज नहीं है। नहीं, वो बस ऐसे कोर्स कंप्लीट कर दिया। वो तो वैसे वो तो हर इसकी कहानी, अब मैं क्या ही बोलूँ उसमें। हर पोर्शन में इंटरफेस